किसी भी बादशाह, रूलर या किसी मुल्क के हुक्मरान को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? शुड ही बी फियर्ड और शुड ही बी लव्ड बाय हिज पीपल? सिमिलरली एक प्रिंस को व्हाट ही नीड्स टू डू in order to come in power and then remain in power for the longest time. इसी तरह से जो बड़े बड़े politicians हैं, corporate leaders हैं, what sort of behavioral pattern and characteristics they need to possess so that जो लोग हैं उनके आसपास, जो confidants हैं, जो close लोग हैं, they remain faithful to him and are loyal to him no matter what. आज इन सब सवालात के जवाबात we will discover in our big book review for today, because today I am reviewing an absolute cult classic. ये वो किताब है which is considered a bible of modern political philosophy. ठीक है? So all the politicians, all the corporate leaders, all the managers, all the departmental heads, you cannot afford to miss this video because this video is about you. So let's be back. Till that time, press the subscribe button so you get regular video updates from my site. Let's be back. Welcome back friends. So without wasting further time, let's delve into the book review for today. और आज जिस किताब को मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, वो इसलिए सेलेक्ट किया है because I was thinking कि यार कुछ tips and tricks शेयर की जाएं with departmental heads, with corporate heads, with managers who wish to lead a team, या फिर politicians and even to the state level, to the federal level, to the provincial level, जो भी leadership position पे है उनके लिए कुछ tips and tricks शेयर की जाएं so that they continue to stay in power. हाँ, अगर अच्छा काम करेंगे तो of course we want them to stay in power, otherwise let's kick them out. So here you go. The name of the book is The Prince by Niccolo Machiavelli. So Machiavelli जो है दोस्तों, for people who don't know him, he was an Italian philosopher and writer जिसको worldwide fame मिली due to this book which I am holding in my hand, The Prince. इस किताब में इन भाई साहब ने अपने प्रिंस जो उस ज़माने के थे, लोरेंजो de Medici, उनके लिए ये किताब लिखी है। उसमें इन्होंने बेतहाशा तकरीबन आई थिंक 2 दर्जन के करीब टिप्स, ट्रिक्स, एडवाइस, रिकमेंडेशन, सजेशंस, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो दिए हैं कि आप अगर ये चीज़ें करते रहेंगे तो आप पावर में रहेंगे एंड पीपल विल बी विद यू, राइट। तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सारे डीप पॉइंट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने इनमें से 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर सकें। बट लेट्स जंप टू द फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। जो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में शेयर किया था वो ये था कि शुड अ किंग और अ प्रिंस और अ लीडर, चाहे वो मुल्की सतह पे हो या ऑर्गेनाइजेशन की सतह पे हो, शुड ही बी फियर्ड और लव्ड? व्हाट डू यू थिंक? Let's see what Machiavelli thinks. Machiavelli कहता है कि he should be both. He should be loved and feared. But this comes with a disclaimer दोस्तों. Machiavelli साहब ये फरमाते हैं कि it's not possible at all that someone can be loved and feared at the same time. Therefore, if given an option, a leader, a prince, should decide to be feared rather than being loved. He says that it is safer to be feared rather than being loved. अच्छा, इसकी भाई साहब रीज़न भी बताते हैं। रीज़न ये बताते हैं कि जब भी आपका या प्रिंस का रिलेशन लव की बेस पे होता है तो वो इट्स बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। आपकी जो रियाया, आपके जो लोग हैं वो ऑब्लिगेशन, आपके अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं, और ये ऑब्लिगेशन बड़ी जल्दी टूट जाती है बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स ही सेज वी आर फिकल, वी ब्रेक वेरी क्विकली। तो जो बॉन्ड ऑफ लव है वो कहता है कि ये थोड़ा सा लूज है। सो एज लॉन्ग एज यू आर सक्सेसफुल दे विल लव यू, एज लॉन्ग एज यू आर इन पावर दे विल लव यू, एंड व्हेन यू आर नॉट इन पावर दे विल नॉट इवन टेक योर नेम। ठीक है, जबकि द रिलेशनशिप ऑफ फियर इज प्रिजर्व्ड, इज बाइंडेड बाय पनिशमेंट। तो जब भी लोगों को डर होगा कि उनको पनिश किया जाएगा, दे विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। दिस इज टिप नंबर 1 दैट ही गिव्स, कि if given an option, a prince should decide to be feared rather than being loved. Okay, let's move on to point number 2. उसमें ये कहता है कि how to deal with flatterers. फ्लैटरी से किस तरीके से डील करना है प्रिंस ने, खुशामदी लोगों से किस तरह से डील करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बड़ा ही मजे का, बड़ा ही टेक्निकल इसने सोल्यूशन बताया इसका। पहले तो वो ये कहता है कि एक प्रिंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि ही कैन एस्केप फ्लैटरी, खुशामदी लोग उसके पास आते रहेंगे। वो ये कहता है कि एक तरीका ये है कि यू टेल पीपल कि मेरे से कोई इधर उधर की बात ना करो, speak with me the truth. But he says there is a downside to it, there is a flip side to it. Flip side ये है दोस्तों
कि अगर प्रिंस के सामने आके या लीडर के सामने आके हर बंदा सच ही बोलेगा तो उस प्रिंस की रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाएगी, रिस्पेक्ट जो है डाइल्यूट हो जाएगी, बिकॉज एवरीवन विल कम एंड स्पीक ऑन हिज फेस। तो the respect of prince in their eyes will lower down। तो इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त और स्मार्ट तरीका बताता है। वो ये कहता है कि a prince needs to select 2 to 3 people maximum amongst all its kingdom or his team who are his confidant, who are his real close people। और सिर्फ इन 2 या 3 लोगों के पास लिबर्टी होनी चाहिए to tell you the truth and at your face। and a prince needs to behave in a way कि जो जितना सच बोलेगा उसको उतना ही रिवॉर्ड किया जाएगा या उतना ही पसंद किया जाएगा। जब वो उनसे सच सुन ले देन ही शुड फॉर्म हिज ओन कंक्लूजन्स, राइट। तो मैक्सिमम 2 से 3 एक लीडर ने सिलेक्ट करने हैं, एक प्रिंस एक बादशाह ने सिलेक्ट करने लोग जिनके पास ये लिबर्टी होगी कि वो उससे सच बोल सकते हैं। एंड माइंड यू दे विल ओनली स्पीक द ट्रूथ जब उनसे पूछा जाएगा, बिला वजह सच नहीं बोलेंगे। जब उनसे पूछा जाएगा दे विल स्पीक द ट्रूथ and whatever the truth is, then the prince will form his own conclusion। so इस तरीके से उसने कहा है कि a prince can avoid flattery, वरना तो लोग आगे कहेंगे सर तोड़े वर्गा ते कोई बंदा ही नहीं हैगा, there is no one like you, आप की तरह का तो कोई इंसान ही नहीं है, राइट। तो इस तरह के लोगों को अवॉइड करने के लिए इसने ये टिप बताई है। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। नंबर 3 वो ये कहता है कि a prince should be well trained in the art of war, he should be very skillful in the art of war। in fact वो ये कहता है कि जब peaceful time हो, जब अमन का टाइम हो, उस वक्त the prince should prepare doubly hard to get himself accustomed to the rules and regulation and tips and tricks of how to fight a war। अब वॉर तो पुराने ज़माने का किस्सा है, अभी भी होती है बट नॉट ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन अगर हम इसका मॉडर्न टाइम्स में एनालॉजी ड्रॉ करें तो वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल you are an undisputed king, you are a leader, you are a number one, so you cannot afford to hibernate and take this position for granted, varna someone else will come from behind and take your spot within no time। so you should always be prepared from a corporate point of view, from an organization point of view, कि आपका जो competition है, keep your eyes and ears open so that no one comes from behind। so you should always be prepared for the competition and should be well versed how to take care of the competition। so ये एक एडवाइस उसने दी अपने प्रिंस को कि भाई चाहे जो भी हो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि आपको आर्ट ऑफ वॉर आनी चाहिए। और आर्ट ऑफ वॉर के नाम से मुझे याद आ गया सन त्जू। इट्स अ माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लास्टिंग बुक बाय सन त्जू। इसका भी कभी रिव्यू करूंगा। इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। Let's move on. Okay, next is point number 4, very important। वो ये कहता है कि how a prince need to select his secretaries। ठीक है, एक प्रिंस के secretaries किस तरह के होने चाहिए। तो वो ये कहता है कि a prince is known by the people that surround him। If the people are wise and intelligent, तो a prince is considered wise। जबकि अगर लोग उसके साथ आसपास बेवकूफ़ हैं तो वो प्रिंस को भी बेवकूफ़ ही समझा जाएगा। लेकिन वो अब कहता है कि एक प्रिंस के सेक्रेटरी को टेस्ट करने के लिए उसने एक टेस्ट भी बताया। वो ये टेस्ट ये है कि अगर उस सेक्रेटरी के प्रेफरेंसेस, उसके पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा हैं प्रिंस के इंटरेस्ट से, देन ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। वेरी सिंपल। एक सेक्रेटरी का जीना मरना सब कुछ उसका प्रिंस है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि आप उस सेक्रेटरी को कभी भी सिलेक्ट ना करें जो ऑब्जेक्टिव हो। हिज मेन पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस शुड बी आपकी हाँ में हाँ मिलाना। अब देखिए ये एक गलत बात है, ठीक है। सो आई एम नॉट अग्रीइंग टू दिस इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज वॉट द जेंटलमैन सेड। बट फ्रॉम अ प्रिंसेस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फाइन, बिकॉज उसको अनकंडीशनल लॉयल्टी मिल रही है अपने सेक्रेटरी से। तो वो ये कहता है प्रिंस को एड्रेस करते हुए कि मेरा भाई प्रिंस, आप हमेशा सेक्रेटरी वो रखें जिसके पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो सेकेंडरी हैं और प्रिंस के उसके लिए पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो प्राइमरी हैं। और फिर जब वंस यू गेट होल्ड ऑफ दिस पर्सन, होल्ड हिम टाइट and reward him, be kind and generous to him। Let's move on to last point। last point बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ये कहता है कि how can a prince be renowned, किस तरह से प्रिंस मशहूर हो सकता है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है। अब इसका बड़ी ज़बरदस्त उसने ट्रिक बताई है या टिप बताई है। वो ये है कि वो कहता है प्रिंस हैज़ 2 options only। one is he can be an absolute friend or he can be a downright enemy। there is nothing in between, कोई न्यूट्रल पोजिशन नहीं होती। Prince lives his life in extremes। एक तो या तो he can be a friend और he can be an enemy। अब इससे उसने बताया इसकी रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि when you are a friend with a person or when you are friend with a country, when you are friend with someone else, तो जब भी जंग होती है, वॉर होती है, तो if he wins
तो ही विल बी अंडर ऑब्लिगेशन बिकॉज आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसके साथ कोऑपरेट किया, तो वो जो भी बेनिफिट्स होंगी, जो भी टेरिटरी होगा, वो आपके साथ शेयर करेगा। जबकि इफ यू लूज तो ही लूजेज विद यू, या इफ ही लूजेज यू लूज विद हिम। तो इन टाइम्स ऑफ टर्मोइल, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, यू विल हैव अ फ्रेंड हु विल बी देयर फॉर योर सपोर्ट अगेन, सो यू विल बी एट ईच अदर सपोर्ट। जबकि अगर एक प्रिंस न्यूट्रल रहेगा तो ना वो इधर का रहेगा ना वो इधर का रहेगा, जिसको हम लोकल जबान में कहते हैं रेलू कट्टा। ठीक है, सो ही सेज, ही रिकमेंड्स दैट अ प्रिंस बेटर बी अ गुड फ्रेंड और अ डाउनराइट एनिमी, वरना वो बीच में रह जाएगा। तो जब कोई जंग जीतेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, जब वो जंग हार जाएगा तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे बुक बडीज। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू दैट। फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, प्रेस द like button and the bell icon so you get regular notifications, and I thank all of you for supporting me, for encouraging me, for your likes and comments. Don't forget to share my videos as well. Till that time, read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.